Namaskar and pranams to all present. And this is my very first TEDx talk ever. And surprisingly, it's my first visit to Jaipur as well. आज तक कभी आई नहीं, ऐसा मौका ही नहीं बना, जबकि दिल्ली से बड़ा नज़दीक है जयपुर, घर की मुर्गी दाल बराबर. वो कभी कभी नज़दीक जाना नहीं हो पाता, इतना दूर दूर चले जाते हैं. Okay. So whatever I am going to talk today will be from a Kathak dancer's point of view. So, we all are running and rushing through life in a very, very fast pace, trying to create as many reels to increase our followers, as Sir said, on Instagram, and to be in the limelight all the time. So the first thing that comes in our mind is to think out of the box. But when I delve into the roots of Indian classical music and dance, I realized that all the things we think is our creation and it is new has already been discovered and explored and done by some legendary people in the past. So by these legends, I can recall of Pandit Ravi Shankar ji, the sitar maestro, who did fusion with Beatles. Then Ghazal Queen, Begum Akhtar ji. Ghazal तो सुनते होंगे आप सब. वो जो हम में तुम में कराते था, एक लाइन गाती हूँ. वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो. वो जो हम में तुम में. गज़लें बेगम अख्तर जी की. देन वाह ताज, none other than Ustad Zakir Hussain ji, the tabla maestro. And when I talk about Kathak, there is only one name that is synonymous with it. He is my grandfather and guru, Padma Vibhushan Pandit Birju Maharaj. So I will quickly brush up through the journey of Kathak. So Kathak was performed in the temples in the form of Katha Vachan. So Katha means story, and we are the Kathakars or the storytellers. So people used to pick excerpts from mythology and they used to recite the stories of Ram, Krishna and Shiva. So that is how Kathak was performed in the ancient times. Then later on, in the medieval era, it moved to the courts of the Nawabs and the kings. And also this Maharaj title that is given to us was given by Nawab Wajid Ali Shah. He was the Nawab of Awadh. So he considered my great-great-great-grandfather ठाकुर प्रसाद जी एज हिज गुरु. ही सेड आप तो नवाबों के नवाब हैं, आप महाराज हैं. तो उन्होंने ये टाइटल दिया जो आज हम भी बेवजह कंटिन्यू कर रहे हैं. अदरवाइज रागनी मिश्रा इज ऑल्सो एज गुड एज रागनी महाराज. सो intimate gatherings were very common at that time. We call it the बैठकीज or the बैठक्स. So the audience, unlike today, used to sit very close to the artist, ऐसे घेरा बना के बैठते थे. And they used to see the expressions and they used to connect with the artist very well. And that audience was also very, very cream. I call it the select or the cream audience. They had great taste in Indian classical music and dance. But my grandfather saw this transition firsthand because the intimate gatherings was now replaced by these huge auditoriums that we see today. आज का भी वैसा ही है. So everyone is sitting a little far from me, and it got replaced by technical facilities, glamour, costume, makeup, lights, और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान आने लगा. So now my grandfather felt the need to bring about some changes in Kathak which bridges the gap between a layman and a dancer. So now it was very, very important for him to take Kathak from the classes to the masses. बहुत सारे इनोवेशंस हैं उनके जिसके बारे में मैं अभी सोच पा रही हूँ, बट सिंस आई हैव टू कीप इन माइंड द टाइम टुडे एंड आई डोंट वांट टू कट माय परफॉर्मेंस एज वेल, सो आई विल जस्ट क्विकली टॉक अबाउट two major points that he brought in Kathak. One is by creating numerical compositions and the other is by creating bhav tihais or the bhav compositions, which has some meaning behind the technical things that we do in Kathak. Because हम कुछ भी अगर करते हैं, these are abstract movements, but we can give some meaning to those movements. चलिए एक एग्जाम्पल देती हूँ. We Kathak dancers have a different language and that will definitely sound very alien to you. For example, किड़तक थुन थुन नाते टेता धादिता किड़धादिता कतिट धादिता कतिट धाधिनता किड़धेत धाधिनता कतिट धा थुन तधा. तो हमारी कुछ भाषा ऐसी है
ये हम डांसर्स एक दूसरे की बात समझ पाते हैं, बट एक लेमैन नहीं समझ पाएगा कि ये किड़तक थुन थुन कौन है, ये नाते टेता कौन है, ये धादिनता कौन है, ये किड़धादिनता कौन है। लेकिन जैसे ही मैं इसके पीछे का भाव एक्सप्लेन करती हूँ, इट बिकम्स ईजियर टू रिलेट टू इट। सो देर आर टू फ्रेंड्स, वन इज़ वेरी लेजी एंड द अदर इज़ वेरी स्विफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक किड़तक थुन थुन नाते टेता धादिनता किड़धादिनता कति टिड़धादिनता कति टिड़धादिनता किड़धे धादिनता कति धा। तो जैसे ही मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ, थैंक यू, जैसे ही मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ तो समझ आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यूमेरिकल कॉम्पोजिशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ढा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ढा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ढा। अब ये एक टिपिकल टेक्निकल कॉम्पोजिशन है। इसके पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं कि एज इफ समवन इज क्रॉसिंग हर्डल्स, तो ये ज़्यादा समझ आएगा। कैसे? 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ढा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ढा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ढा। तो इस तरह से ये ज़्यादा रिलेटेबल हो जाता है। सो कथक इज समथिंग विच इज़ इन आवर एवरीडे लाइफ, वी डोंट रियलाइज इट, पर हम रोज़ ही अपनी ज़िंदगी में कथक करते हैं। ईच वन ऑफ यू, बिलीव मी। अगर मुझे एक सेंटेंस बोलना है, चलो उधर चलते हैं, तो एक तो वर्बली बोल सकते हैं कि चलो उधर चलते हैं, एक फ्लैट फेस के साथ, पर समझ नहीं आएगा कि किसको बोल रहे हैं और किधर जाना है। अगर मैंने ये बोला तब भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो कॉन्टेक्स्ट तभी क्लियर होता है जब हम एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। ये सेम सेंटेंस मैं विदाउट द यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड विदाउट द यूज़ ऑफ मूवमेंट्स भी मैं कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इतने में भी बात समझ आ जाएगी दूसरे पर्सन को। तो इस वजह से कथक हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। करणवीर जी विल नो बेटर, आर्टिस्ट तो लेकिन ये चीज़ें सिर्फ आर्टिस्ट से एक्सपेक्ट करी जाती हैं कि वो अपने आप को बड़ा ही प्रेजेंटेबल रखे, बट दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग एंड दैट इज़ वाई कथक इज़ बियॉन्ड द स्टेज। वो सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं है। कुछ और कॉम्पोजिशंस के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ, बड़ी मज़ेदार तिहाइयाँ ही हैं, तो मैं आपके साथ साझा करती हूँ, तो आप, आई होप आप इन्जॉय करेंगे उनको। सो माई ग्रैंडफादर वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय नेचर। तो उनको जानवरों की गति, उनके चलने में भी, उनके वॉक में भी लय दिखती थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से धिन तकिट ता तकिट धिन तकिट ता तकिट तथई तक तकिट ता धिन तकिट ता तकिट धिन तकिट ता तकिट तथई तक तकिट ता धिन तकिट ता तकिट धिन तकिट ता तकिट तथई तक तकिट धा। तो इसमें आपको पीछे हाथी की चाल नजर आएगी, जबकि है ये टेक्निकल कॉम्पोजिशन। अनदर एग्जाम्पल, ये बहुत ही फेमस था, दादा करते थे, बहुत सबको पसंद आता था उनको देखने में। तो एक बर्ड जो है, मदर बर्ड, शी इज़ फ्लाइंग विद सम फूड इन हर माउथ टू फीड हर चिल्ड्रन। वो बच्चे जो हैं, दे आर चर्पिंग एंड आस्किंग फॉर फूड। तो अब आपको पहले मैं नॉर्मली रिसाइट करके दिखाऊंगी, फिर मीनिंग के साथ। धा दिन दिन दा, जो जानते हैं कथक वो तो ताल दे सकते हैं। धा दिन दा दिन दा दिन ता तक दिन दा 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 धा 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 धा 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 धा। अब ये तो मैंने बड़े टेक्निकल तरह से मैंने बोल दिया, पर जैसे ही मैं बोलती हूँ, मैं आगे करती हूँ।
वो 4 5 में वो बर्ड्स का चर्प करना उनको दिखता था। तो 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरा जीवन लय में है, हम सब लोग रिदम में चल रहे हैं, बिकॉज द बिगेस्ट रिदम, महाराज जी ऑलवेज सेड दैट द बिगेस्ट रिदम रिसाइड्स विद इन यू, दैट इज हार्ट बीट। टाइम जोन्स कैन बी डिफरेंट। अभी यूएसए में आई थिंक 2 AM हो रहा होगा, यहाँ पे 2 PM हो रहा होगा, बट देर इज वन थिंग दैट इज कॉमन, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड्स। टिक टिक टिक, वो टिक 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 नहीं हो सकता, वो टिक 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 टिक। तो ये रिदम लय हम सबको बांध के रखता है। हमें लगता है कि क्लासिकल इज समथिंग विच इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी, ये सब तो समझ नहीं आता। नहीं, ये समझ आता है, ये आपसे बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। Another example, so he started observing rhythm and lay in sports as well. So here is an example, if I throw a ball, it takes some time for the other person to catch it, right? तो वो जो स्पेस की ब्यूटी है, साइंस, उसको दादा ने कैसे लय में बांधा। तो मैं ऐसा करती हूँ, बॉल थ्रो करती हूँ और आप कैच करिए। धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन ता तक दिन दिन धा दिन धा दिन दिन धा दिन दिन ता तक दिन दिन धा तक तक दिन दिन तक तक ता धा धा तक तक दिन दिन तक ता धा धा तक तक दिन दिन तक ता धा। तो वो जो स्पेस है वो इस तरह से कुछ पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, 1/3 इंस्पायर्ड बाय माई ग्रैंडफादर। सो मुझे ऐसा लगा कि इसमें स्काई शॉट नज़र आ रहा है, तो थोड़ा जब हम स्काई शॉट जलाते हैं तो थोड़ा समय लेता है वो गर्म होने में, एक बार फिर वो ऐसे शूट करता है और ब्लास्ट। तो एक उसकी तिहाई, धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन ता तक दिन बिना के ना के टिका 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 ता गिना तदा बिना के ना के टिका 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 ता गिना तदा बिना के ना के टिका 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 ता गिना तदा। ओके है, ओके, अच्छी बात है। अब कुछ एग्जाम्पल्स, ये तो रेसिटेशन के थ्रू एंड with the help of hand movements, footwork, spins and all. But the most important thing in Kathak is the katha, through the expressions and emotions. And this is something that every one of us do in our daily lives. जैसे कि मैंने बोला कि एक सिंपल सेंटेंस का मतलब तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं करेंगे। So if I send a text to you, you don't get the tone, but if I send a voice note, उसका tone समझ आता है। So here is a ठुमरी, छेड़ो ना नंद के सुनहु छैल मोहे। एक सिंपल सी लाइन, इसके पीछे कितना अप्रोच, कितना अलग अलग हो सकता है। एंड आई ऑल्सो हैड अ हार्ड टाइम ट्रांसलेटिंग द मीनिंग ऑफ छेड़ो ना इन इंग्लिश, बिकॉज द गूगल ट्रांसलेशन सेज टीजिंग, एंड इफ आई डू छेड़छाड़, ईव टीजिंग, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल। सो बेहतर है कि मैं कुछ चीज़ें हिंदी में ही बोलूँ, क्योंकि सच में मुझे ट्रबल में तो बिल्कुल ही नहीं आना है। तो ये छेड़छाड़ जो है, ये बड़ी प्यार भरी छेड़छाड़ है राधा के बीच में, कृष्ण के बीच में, या कृष्ण एंड द गोपिकास। छेड़ो ना नंद के सुनहु छैल मोहे। एक ही लाइन को कितने अलग अलग तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। सेम मोमेंट्स, सेम लाइन, बट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। फर्स्ट इज इरिटेशन या being upset with someone. For example, छेड़ो ना नंद के सुनहु छैल मोहे। छेड़ो ना, इरिटेशन, एंगर। छेड़ो ना नंद के सुनहु
चैल मोहे छेड़ो ना, एंगर, शाइनेस, छेड़ो ना नंद के, सुनहूँ चैल मोहे छेड़ो ना, शाइनेस। एक और छेड़ो ना हो सकता है, ए छेड़ो ना नंद के, सुनहूँ छैल मोहे छेड़ो ना, कि आओ छेड़ दो, कोई बात नहीं, ये भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। एक और छेड़ो ना हो सकता है। सो माई aunt and my guru, Vidushi Mamta Maharaji, she is the first female Kathak dancer who pursued dance as her profession in the Maharaj family. And it's because of her that we girls are dancing today. So ममता बुआ ने भी एक बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया कि एक और छेड़ो ना हो सकता है कि गोपिकाज जो है वो कृष्ण को बांसुरी दे रही हैं कि एक छेड़ो ना नंद के, सुनहूँ छैल मोहे छेड़ो ना, कि बांसुरी को छेड़ दो, ये भी हो सकता है। सो कथक इज समथिंग विच इज reflected in our everyday lives, and all of us are storytellers in our own ways. We don't realize it, but we are storytellers in our own ways. So now I will conclude my talk with a performance. छोटा सा technical कथक थोड़ा सा present करूँगी, but I will make sure that even in the technicality, this katha does not fades away. Mesmerizing and spellbinding. Thank you, ma'am. tunga digi digi tunga tunga digi 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 da digi da digi da digi da digi da digi tunga digi digi tunga tunga digi 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 da digi da digi da digi da digi da tunga digi digi tunga tunga digi 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 da digi da digi da digi da digi da digi
தகட்டு தகட்டு தகதிதா தரம் தகட்டு தகதிதா தகடுதா தகடுதா தெடா தெடா அதெடா 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 டா 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 Da